students need, because current education system only provides knowledge about a particular subject. This does not contribute in making a social person. करंट एजुकेशन सिस्टम सिर्फ हमें नंबर्स के पीछे भागना सिखाते हैं कि हमें स्कूल और कॉलेज के अंदर कैसे अच्छे नंबर लेके आने, कैसे सबसे ज़्यादा नंबर लेके आने और एक डिग्री प्राप्त करनी है। यह हमें सिर्फ पैसों के पीछे रहने को सिखाता है। यह हमें सोशल पर्सन नहीं बना पाता और हमें यह भी नहीं सिखाता है कि हमें अपने बड़ों का कैसे व्यवहार करना है और उनका कैसे आदर करना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट जिसमें स्पेशल टैलेंट हो, लाइक कि वो अच्छी पेंटिंग कर सकता है, अच्छे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है, या फिर कोई किसी खेल में अच्छा हो, तो उसका यह टैलेंट यह कहकर दबा दिया जाता है कि इस समाज में सिर्फ वही सफल हो सकता है जो अच्छे नंबर्स के साथ पास हो और उसके पास एक अच्छी डिग्री। ऐसी ही विचारधारा के कारण आजकल के लोग सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं, सिर्फ पैसों को ही अहमियत देते हैं। उनकी नज़रों में परिवार, समाज कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैसा ही सब। और इस प्रकार वे अपने जीवन के कुछ बहुमूल्य और खुशी के क्षणों को खो देते हैं और अंत में वो डिप्रेशन, स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं। और हमें कई इस प्रकार के केसेस सुनने को मिलते हैं जिसमें अंत में व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेता है। Hello, I am Bharati Singh and I will tell you the effects of current education system. There are many effects on people and society because of this current education system, like it suppresses special talent and dream of person. They are become only an earning machine without any feelings, due to which many cases of crime are coming. These people don't want to help anyone. If anyone get into an accident, then very few came to help them because they don't want to get involved in police cases and going to hospital with them. This education system is only making an earning machine, and this thought is killing human values. Everyone want to be an engineer, doctor and get in government job because they think that this is only future. Without this, they can't live a happy life. But they don't think that if everyone will be doctor and engineer, then who will feed us? That is a big problem of current education system. Right education is need of today's world if we want to save humanity, and this is too much necessary. According to me, right education system is when a child is examined by his or her talent. Like if anyone is a good painter, then teacher motivates them to show up their talent. Teacher should teach their student about moral values and how to talk and give respect to elder and how to behave. Because there is a great line that education is shown by your behavior. Without moral values, humans are like animals, nothing different between animal and human. Thus, a right education system makes a person which is a good for society and having good behavior. Education is not just limited to the information provided by the books. According to the former IPS Kiran Bedi, education comprises of personal, professional, value-based and social aspects. Currently, most of the schools only provide professional education. Value-based and social education is required to make one a better citizen. For one to be a perfect adult, all these four types of education are necessary. Teachers should be training their students in such a way that they result good social leaders, help them build successfully bright future. वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कुछ चीज़ों को है जो बैन कर दिया गया है पूरी तरीके से, जिसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। पहला, छात्रों को शारीरिक रूप से प्रताड़ना देना। मतलब पहले ये होता था कि अगर कोई बच्चा स्कूल में होमवर्क करके नहीं आ रहा है तो शिक्षक उनको मार सकते थे, लेकिन आजकल टीचर ऐसा नहीं कर सकते और अगर वो करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा ये, किसी भी बच्चे के एडमिशन के टाइम कोई भी लिखित परीक्षा नहीं ली जा सकती। तीसरा, छात्रों को ट्यूशन पढ़ने के लिए बाध्य करना। अगर पहले ये होता था कि छात्रों को बोल दिया जाता था कि ट्यूशन पढ़ो, आपको अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन आजकल ट्यूशन पढ़ना या ना पढ़ना वो स्टूडेंट के अपने ऊपर है, ना कि उनके टीचर के कहने। चौथा, बिना मान्यता वाले स्कूलों का संचालन करना। मतलब आपने देखा होगा जैसे आसपास छोटे प्राइमरी स्कूल खुल जाते हैं जिसमें मान्यता नहीं होती, बोर्ड से उनकी मान्यता नहीं होती, लेकिन फिर भी वो स्कूलों का संचालन कर। तो जो बिना मान्यता वाले स्कूल हैं उन पर कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि बिना मान्यता वाले स्कूलों में बच्चों को अगर डिग्री दी जाती है तो वो गैर कानूनी है और उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। हाँ, तो बच्चों जो पीडीए भेजिए तो मुस्लिम से पढ़ के आना, एग्जाम में तो पास। 2000 years later.
एवरी टीचर शुड हैव टू फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो पूरा एजुकेशन है वो टीचर के ऊपर निर्भर करता है। आजकल के टीचर कम ट्रेंड है, वो केवल एकेडमिकली पढ़ाते हैं, उनके अंदर जोश कम है, डेडिकेशन कम है। ये सिस्टम बनना बहुत नेसेसरी हो गया है कि टीचरों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाए और वह फॉलो करें। स्टूडेंट को एक एजुकेटेड सिटीजन बनाने के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके।